Okay, guys, kindly switch on your cameras. The rest of the people who have not heard, kindly switch on your cameras. Third announcement, those people who have not heard me so far, kindly switch on your cameras. We'll wait for 2 more minutes and then we'll start. Yash Sharma and Aditya, kindly switch on your camera. We are going to start. Otherwise, you will be removed from this classroom. Sorry, Yash has said in the chat that he'll need 10 minutes. Okay. 10 more minutes and then 11:15, you may not be here. So first of all, congratulations for all of you who has cleared the first step, which is primarily, I would say, written exam, where your knowledge about the subject is being checked. Now, just a moment. So what exactly are they going to check now? Because already subject knowledge is being checked out and they have felt that you are suitable candidate among those 32 people. Ratio is 1:4. Because for the screenplay writing, number of seats has increased, which is a good sign. And that's why ratio is increased in terms of the 60 students are called for screenplay writing, and for direction, it is 46 students. So primarily ratio is 1:4 for direction and screenplay people. For those who are only for screenplay, it is ratio wise in terms of number of seats, it is still more or less the same. Now, if you look at carefully the schedule, first I will read the schedule of screenplay writing. So 15th, they are doing it in a two group. So in one group, they have called roughly around 30 people. Another group, they will call another 30 people. And
25th is the document verification from 9 to 3, which means nothing will happen on that day, which does not means nothing will happen. It could also means that they might screen a short film for you after the 3 o'clock, not just one film, maybe the 2 or 3 films. So something may happen. The exact schedule would be given to you only once you reach over there. And then 26th and 26th is 9 o'clock to 1 o'clock. It shows introduction section plus session plus lecture. And 2 o'clock to 5:30 is a screening, writing assignment, one writing assignment, two, and group discussion. Now, this is a very, very important thing. And then 27th, 28th, because the 30 students are called, so 15 each would get roughly around 20 to 30 minutes, where individually the director might interact with you along with the panel of expert people, or it could be just the panel of expert people. Director may not interact, but 90% possibility is the director would also be a part of the discussion on these 27th and 28th. This is for script writing people. For direction people, it says direction means direction and screenplay. Fourth, yeah, fourth, 9 o'clock to 3 o'clock, preview theater, TV wing, document verification. And again, the same thing from next day on the 5th, 10 to 11:15, statement of purpose, essay writing. Then it says 11:30 to 1 o'clock, question on image. And then on 6th, it says 9:30 to 6 p.m., 3 short exercises. Very, very important thing. Those people who believe in checking their mail every hour, they would have received a link, which I have sent it to email to most of you people. Now, the 3 short exercise could also, normally it is 3 people in the frame, but it could also be long shot, mid shot, close up. If you go on the internet and search the meaning of 3 shot, it could also be long shot, mid shot, close up exercise, or it could be 3 people in the frame exercise. Now, it could be interpreted in both ways. 90% of the time, I suppose that it should be 3 people in the frame, talk happening within 3 people, or discussion happening within 3 people, or whatever. Then 7th and the 8th is 9:30 to 6 p.m. personal interaction. Again, on the 8th, 9:30 to 6 p.m. personal interaction. This is for direction and screenplay, where 40 plus students are being called. 46 is the exact number. Assuming that everybody will end up, but it can also happen that 2-3 people may not be there. So not 46 means 46, because some people have the priority to join SRFTI, not FTI. But at least for the interview, they should show up. This is what expected. But normally 1 or 2 people do disappear. This is a past experience. So statement of purpose, essay writing. What exactly it means? That why you want to become a director. Everybody has the various answers to it. But more important than that is how you think that you could become a director. What is your personal perception? There are various perceptions which are available in the internet, where you can Google it, figure it out, read it. This statement is very, very important, statement of purpose, because if you ever apply in your life, one day you would apply, some of you. There's a grant by Rotterdam called Screenplay Development Grant, or there's a grant for film production grant and distribution grant also. There are 3 different kind of grants based in Holland, Amsterdam, Rotterdam. Rotterdam is a different city than Amsterdam. This festival is very prestigious because of this reason also. So there when you submit a proposal, you also submit making a statement of purpose. Okay, why you want to make this film? What appeals to you as specifically this subject? What you have to do with this subject? Okay. So there it is a very specific subject which you are pitching over there. Here it is a course which you are pitching for. Why you are not becoming an actor or a cinematographer, editor, sound recordist? Why you think you are more suitable to become a director? What appeals to you in this particular domain is what exactly they want to check. Okay. So it should be very personal, your personal reasons for mentioning over there. And this could be one part of it, but not necessarily only from 10 o'clock to 11:15. They might ask you develop it in 15 minutes, which you can develop it now also.
Not necessarily there you have to sit down and write. You can still have developed this statement of over here now also, and there you can just read out your statement. So this is something which you can prepare beforehand. Right now you have a time, so beforehand you can prepare and take that statement and read it out over there. Whenever they ask you or they ask you to submit it, you can submit the printout or PDF file, whatever it is. So that's a part one. Then comes the question on image. This has been practiced in the screenplay writing as well as in direction also. They give you an image and develop a story out of it, or develop a story and a dialogue out of it. That kind of exercise is there. So maybe what I'll do is, one of our online interactive classes, we had done such kind of exercises, and one of the exercise I will pick it up and send a link to you to watch it, to understand how the different people reacted to a particular image to develop a story out of it. Okay, so that's one thing I can help you out to figure it out how to go about it. Not necessarily you may agree what the other have done. You could do a different thing, and obviously you will get a different image. So image is a kind of prompt. This exercise you can do by yourself also. If you go to the internet, there are various websites which can give you a prompt. Search by the keyword called prompt, and then you will find various situations on which the images would be there, and you could do exercise of your own. Now question is, what you have written is right or wrong. That nobody will be able to tell you. You people have to figure it out yourself. What you have written is right or not. Some kind of pre-exercise, you can do that by yourself. Then there is a 3-shot exercise. As I said, that I have sent you a link. Read that. It's a very important, what do you call, YouTube channel, which they sell many things. They sell a software by Studio Binder. Studio Binder is a very important channel where there are some interesting videos are there. The 3-shot video and some detail about the text is given over there. Read it properly, figure it out, how you can go about it in terms of any exercise given to you, which will be not a editing based exercise, which will be primarily based on your understanding of shot taking. That shot taking is a part of director's team, not the cinematographer. Many people think cinematographer do the shot taking. No, it is a director who does the shot taking, and in that it depend upon what kind of exercise it is. Primarily is over the shoulder shot, whether there's a close up shot, whether there's a two people shot. So that kind of shot taking is there. There's a book, very interesting book, which everybody should read, whether you go to FTI or not. If you want to become a director, it is called 5 C's of Cinematography. Don't get scared by the word called cinematography, because it is a part of cinematography. Cinematography consists of two things: technical understanding of lighting and composition is a part of the composition, as I said, which is the aesthetic. So aesthetic understanding is also required. And since it is a filmmaking, so filmmaking means practical. It is not a theoretical game plan. So you should be able to understand and execute. So that is what this 3-shot exercise is there, which means they'll give you a camera and would ask you to develop a idea around it. And maybe they will give you some actors also, because FTI also have acting course, maybe for a, and they might ask you, some of you could become an actor for somebody else, and somebody else can become an actor. They have their plan intact, so you don't need to worry about it, how to find the actor over there. So this 3-shot exercise is more of your understanding of composition sense. I repeat a word called composition sense. That composition sense has to be there. Okay. So Mohak, are you going to switch on your camera? No. So fine. Thank you. What I mean to say is, this is a sense of composition. Sense of composition is required by the directors, that if you do not have a sense of composition, then you are not technically updated. Technical updation is required for a director. And why this course is called Direction and Screenplay? Because to become a director, you first have an understanding of screenplay. You may not be able to alone write a screenplay. You need a help of 3 more people. Even people like Federico Fellini, if you look into his filmography, you will find 4 people working on the screenplay. He is always one of them. So you as a director, and in collaboration with other scriptwriters, you need to work upon them.
of your idea. So script writing is basic part of the, it's like if you want to go abroad, first thing is you have to have a passport. So it's like a passport to go abroad. Want to become a director, you should understand the screenplay writing, and to large extent, you should be able to write also a scene by yourself in collaboration with other people to get the best of the idea from others. So that's a 3-shot exercise. Personal interaction. Now, personal interaction could be anything, which could be that they'll show you a short film and would individually ask you. This personal interaction could be, normally it is always 1:1. It could be in presence of director also. It could be divided in personally. They might just 20 minutes, they will give it to you. And then finally on the last day, everybody will have the interview with the director. 10 minutes each would be facing the director. And then rest of the time you would be doing nothing but waiting for your turn to come. So one day could be a group interaction, individual interaction by the faculty member, 3 faculty member, 1 will be outside expert, and 2 would be from the FTI faculty itself. So 3 member group would be there. It could be 4 also, but 3 would be definitely there. So 3 member interaction would be there where they could ask any question with you. They would have shown you a film and particularly ask a specific question with you. Let's say, for example, very often I ask a question. If you watch the opening sequence of a film called Knife in the Water by Roman Polanski, it has something very, very interesting. Once the rolling title is over, the director has shown his master stroke. So, what is the master stroke as a director? This is one of my exercise when I want to evaluate people. This is one of the way I evaluate people. So that's one. There could be another mechanism. Let's say, for example, I have an image and ask you to interpret. Very famous image, which I use very often, is a Amul, where 3 films, 3 characters are there, and something is written below over there. And then I ask you what exactly this image meant for. So everybody has their own mechanism to find your intelligence, your understanding, your capability to think. This is what they are looking at it. And since it is a screenplay writing, the screenplay writing, if you ask me in a one word, what exactly it is all about? It is about your ideation capabilities, your capability to ideate on a given situation. Now, for example, if you look, for example, I'm just giving an example, offhand example. Look at the background of everybody. We have here 9 to 10 people. 10 people have 10 different backgrounds. This is my idea of my background. Somebody has idea of a bulb in the behind. There's a guy called Abhinav, where you see from the backside, too bright a background. Then there is someone else called Spandan Adhikari, where the light is coming from the top. Some other people have some curtain, some other people have some low angle. Yash Sharma having a fan on his head. Okay. So this is your understanding. Everybody has their own understandings. Anshul has an understanding of background as a blur. Could be any background, you could blur it. You might be sitting at an odd position, you can just blur it. It becomes a little better than what it will be otherwise. So this is, everybody has a understanding of something. So what is your idea of a frame? That is what they want to check in the 3-shot exercise, which is a sense of composition, as I said. If you have not read it, for God's sake, download this book. Ideally, you should buy it. Only one book I always recommend to buy. Why? Because you like to have a physical, tangible feel when you're reading a book. Photocopy se bhi kaam chal jata hai. But when you have a physical, tangible book in your hand, you also enjoy it. You can mark it, you know. मतलब PDF डाउनलोड भी कर सकते हो इंटरनेट से, अगर पैसे खर्च करने की इच्छा नहीं है और अभी टाइम थोड़ा सा कम है. बट ये किताब हर आदमी को पढ़नी चाहिए. और इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है. टेक्निकल मतलब कोई सर्किट डायग्राम बना हुआ है, कोई मैक्स प्लांक का वेव इक्वेशन है, या कोई इरविन श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है जो समझने में बड़ी खोपड़ी लगानी पड़ेगी. ऐसा कुछ उसमें नहीं है. एनीबडी हु हैज एन इंटरेस्ट इन सिनेमा कैन अंडरस्टैंड दैट, एंड दैट बुक इज अ मस्ट. एक और किताब है जो थोड़ा टाइम लगता है उसको पढ़ने में, वो है ग्रामर ऑफ फिल्म लैंग्वेज.
ग्रामर ऑफ फिल्म लैंग्वेज थोड़ा मोटा किताब है, और उसको भी धीरे 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 रोज 2-2 4-4 पेज जो है पढ़ते रहना चाहिए। 1 साल में खत्म हो जानी चाहिए। उसके बाद उसका प्रैक्टिस चालू हो जाता है लाइफ में। कभी ना कभी वो किताब, जिन लोगों को फिल्म मेकर बनना है, पढ़नी पड़ती है। आज से चालू करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तब भी अच्छी बात है। फिल्म मेकर तुम्हें बनना है, तुम्हारे पड़ोसी को नहीं बनना, तुम्हारी मम्मी को नहीं बनना, तुम्हारे पापा को नहीं बनना। कमिंग टू द एक्सरसाइजेस, राइटिंग एक्सरसाइज जो आप लोगों ने पहले की हैं कभी ना कभी। कुछ लोग जो इंटरेक्टिव क्लास के 2-3 लोग हैं हमारे यहाँ, 15 दिन हम लोगों ने कुछ और नहीं किया है, बल्कि एक सिचुएशन के ऊपर सब लोगों ने प्रैक्टिस करने की एक्सरसाइज की है। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइज की है, दे आर लिटिल मोर कॉन्फिडेंट। जिन लोगों ने नहीं की है, कुछ तो किया होगा कि रिटर्न एग्जाम क्लियर किया है तो कुछ तो आता होगा, सब्जेक्टिव भी आता है होगा तभी तो क्लियर हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिनका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, सब्जेक्टिव क्लियर नहीं हुआ, वो घर में बैठ के दीवार देख रहे हैं अभी आराम से बैठ के। तो आप लोग यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आप लोग उन लोगों से बेटर है। तो राइटिंग एक्सरसाइज तो होगा ही होगा वहां पर। अब वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। आपको एक सिचुएशन का एक सीक्वेंस का कुछ पार्ट दे दिया, उसके बाद बटन दबा दिया, अब आपका बोला, अब आप इसको डेवलप करिए। किसी भी फिल्म का पार्ट हो सकता है। कोई भी यूरोपियन फिल्म ले ली उन लोगों ने, आपको 5 मिनट दिखाया, 10 मिनट दिखाया, 15 मिनट दिखाया, और उसके बाद हो सकता है वो फिल्म आपने देखी हो सकता है आपने ना देखी हो। ना देखी हो तो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है अब क्या होने वाला है आगे। और अगर देखी हुई है तो थोड़ा फंस जाता है आदमी, क्यों? आपको पता है कि इसमें फिल्म में तो ऐसे ऐसे हुआ था, अब मैं कैसे करूं कि उससे अलग हो। उसी को तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो ऐसी फिल्म को ढूंढ ढांड के लाएंगे जो तुम लोगों ने जनरली नहीं देखी होगी। उनको पता होता है तुम्हारी शक्ल देख के कि तुम कितने बड़े ब्रह्मज्ञानी हो। कितने भी बड़े ब्रह्मज्ञानी हो, उनके पास एक ऐसी फिल्म जरूर होती है जो तुमने नहीं देखी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक फिल्म का नाम लेता हूं, रोंडो। कितने लोगों ने देखी है फिल्म? हाथ उठाओ जरा। एक आदमी का हाथ नहीं उठने वाला है यहाँ पे, मुझे पता है, इसीलिए मैंने नाम लिया है वो वाला। तो उनके पास ऐसे रोंडो जैसी 10 और फिल्में हैं। रोंडो जैसी 10 और खतरनाक फिल्में हैं। खतरनाक फिल्म है ये उजुल फुजुल फिल्म नहीं है। तो कोई भी ऐसी एक खतरनाक फिल्म वो आपको हो सकता है 15 मिनट दिखाएं और उसके बाद बोलें कि आप जो है अब आप आगे इसको डेवलप कीजिए। सो वो एक बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है उन लोगों के लिए, डिफिकल्ट आपके लिए है। जितने वर्ड्स, इसीलिए मैंने पिछली बार एक ओरिएंटेशन किया था, उसमें ये भी बोला था कि अगर आप अपना लैपटॉप लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने कहीं नहीं लिखा लैपटॉप के लिए, क्यों? क्योंकि उनको पता है पेन और पेपर तो हम दे ही देंगे सब लोगों को, लिखो भैया। तो लैपटॉप में झंझट ये होता है कि आप पीडीएफ बना के दोगे फिर प्रिंट आउट लोगे, तो प्रिंट आउट में थोड़ा आसान हो जाता है उन लोगों के लिए भी, आपके लिए भी। और नहीं भी है तो कम से कम मैं खुद तो पढ़ दूं, खुद को लिए तो आसान हो ही जाता है। आप अपने टैब से पढ़ के उनको सुना सकते हैं। हाथ से लिखोगे तो खुद ही नहीं पता लगता कई बार क्या लिखा है मैंने। हैंड राइटिंग इतनी खतरनाक होती है लोगों की, खुद लिख रहे हो खुद को ही नहीं समझ आ रहा क्या लिख रहे हो। तो लैपटॉप का एडवांटेज ये होता है कि आप जो है उसमें जो लिख रहे हैं वो आपको, उनको भी समझ आएगा कि आप जो है क्या लिख रहे हैं। तो दैट्स माय सजेशन। और कभी ना कभी तो आपको लैपटॉप खरीदना ही पड़ेगा। कौन सा लैपटॉप लेते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लैपटॉप क्या है किसी को क्या पता, क्या मतलब है? मेरा सर का दर्द है, वो बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, आप लोगों का, आपके अपने अपने बजट के हिसाब से आप कोई भी एक लैपटॉप ले लीजिए। आज के टाइम में लैपटॉप इज अ मस्ट। अगर आप थोड़ी पढ़ाई लिखाई करने में विश्वास करते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि करते हैं आप लोग, इसीलिए आप एफटीआई जाना चाहते हैं। तो ये ब्रीफ हो गया। कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी सब लोगों को। किसी भी टाइप का कोई भी एटीट्यूड वहां नहीं चलेगा। एटीट्यूड कैसे पता लगता है? आपके ईमेल के डीपी पे, आपके व्हाट्सएप के डीपी पे किसी ने बिल्ली लगा रखी है वहां पे, किसी ने अपनी खोपड़ी का बैक साइड लगा रखा है, ठीक है, किसी ने कोई हरियाली पहाड़ पर्वत लगा रखे हैं। डीपी के ऊपर आपका सिंपल क्लोजअप होना चाहिए फेस का। दैट्स इट। यू आर गोइंग टू बिकम ए प्रोफेशनल नाउ। यू आर नो मोर जेंजी। जेंजी समझते हैं आप लोग? कैफेटेरिया में जाके बैठे हुए हैं, अपना समोसा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं लड़कियों को, वो सब टाइम खत्म हो गया आप लोगों का। आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पिला लिया सब लोगों को, ठीक है। अभी धंधे की बात होनी है, करोड़ों का धंधा है ये जो बिजनेस है, दिस इज अ बिजनेस ऑफ करोड्स। आई हैव ए फ्रेंड फ्रॉम बॉम्बे इंडस्ट्री, हिज डायलॉग इज, आई एम रिपीटिंग हिज डायलॉग, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन। He says, Naresh, you are a friend from ages, that's why I'm talking to you.
Normally, I do not talk to a person who do not use the word crore in his daily conversation. जो आदमी करोड़ शब्द इस्तेमाल नहीं करता अपने कन्वर्सेशन में, उससे बात ही नहीं करता हूं मैं. क्यों? ही इज नॉट फॉर माई बिजनेस, बिकॉज ही इज अ बिग डिस्ट्रीब्यूटर, एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑलवेज टॉक 10 करोड़ चले गए, 20 करोड़ आ गए. करोड़ इज द वर्ड. सो यू आर एंटरिंग इन टू अ बिजनेस वेयर करोड़ इज द की वर्ड, which means professional. How you become professional? By having a LinkedIn profile. LinkedIn profile. If you do not have, today after this class, please create it. Facebook profile. If you do not have, kindly create it. And use a sensible DB over there so that people can recognize you. I can't recognize if you have put up a cat's picture over there. You understand? Or some greenery, some mountain, rivers. Okay. So put a nice simple close-up of yourself, smiling preferably. It look nice. LinkedIn profile, Facebook profile, Instagram, because even if I say you are not going to be Gen Z anymore, but still Instagram is good to have pictures over there. But two are must, LinkedIn and Facebook. Prepare your CV. Prepare your CV. PDF file of your CV. Don't all write all these nonsense. I like playing table tennis. I like going to eat some momos or this and that. Don't talk about these hobbies. I collect coins. Nobody is interested whether you collect coins or not. Just a professional profile. Okay. Watch it. Various profiles are available on the internet. How professionally a CV should be prepared, and avoid all these things which I have just told you. And if you don't have a LinkedIn profile, do create it as soon as possible. And this must be there, even if they don't ask. Even if they don't ask, you should have it, because they might ask you. If I would be a part of the panel, I would say, okay, guys, you have a 10 minutes time. Please email at this email your CV. Because I have to evaluate you. You are going to get evaluated over there. Remember it. So how they are going to evaluate? They have told you in this letter only 25%. 75% they have not told you. 75% they will figure it out. Whether the class start at 9 o'clock and you will end up at 9:30 with your tea in your hand कि सर मैं तो ब्रेकफास्ट कर रहा था अभी. ऐसे लोग होते हैं वहां पे. मेरी क्लास के अंदर जब मैं किसी जमाने में ओरिएंटेशन के लिए गया था, मेरे बैच के अंदर एक लड़का था जो हमेशा लेट आता था. ब्लड में था उसके. यू कांट डू इट. वेरी टैलेंटेड बॉय, ही वाज नॉट सिलेक्टेड. क्यों? जो आदमी अभी सेलेक्ट नहीं हुआ है वो आदमी अभी क्लास में लेट आता है. तो जब क्लास चालू होगी तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो क्लास में आएगा. सो डिसिप्लिन इज समथिंग दे ऑल्सो लुक एट इट. Political views, no more political views, at least till the exam. Once you get in, then you could do it, because they don't like people who are going to create a lal jhanda over there and sit down and strike and all that shit. They don't want. They want people who are academically inclined, people who are interested in making their career rather than creating a havoc over there. Okay. So that's another thing. These are the few things which I have told you. Last time I did mention about certain films which are cult short films. You must watch it. I will read it out once again, those name of those films. Red Balloon, Happy Anniversary, Incident at Owl Creek, Glass by Bert Hanstra, Zoo by Bert Hanstra. These are the short films which are well known on the internet also. You can search it. Something we can prepare in advance. For example, they might ask you, pick up any film which is the adaptation of a short story or a screenplay, and what did you like about it? While that personal interaction is happening, what they are going to ask? They are not going to ask which restaurant you go to for your dinner. They are not going to ask this. They are going to ask something connected with the profession, which means primarily connected with your subject, your area of interest, which is direction and screenplay or just screenplay. Some people over there have this issue of Hindi versus English. This Hindi versus English is over now. Because you have qualified the written. Even if you have written in Hindi language,
somebody has given you enough marks so that you could be a part of the second round. So even if you write in a Devanagari Lipi in Hindi, it doesn't matter. What matters is what you write. Language is not an important. And as I said earlier also, FTI believe that a great screenplay is one which is written without dialogue, which means visual. So visual has a language which is beyond Hindi, English, German, French, Italian, Spanish. Visual is a visual. एक फोटोग्राफ स्पेनिश फोटोग्राफर खींचे और कोई एक दरभंगा मोतिहारी का आदमी फोटो खींचे, you cannot figure it out who is shot by a French guy and which is shot by someone from Hindi belt. So this Hindi belt versus English belt is no more. What is more important for them is your understanding, your intelligence. So also particularly for direction people, this three image exercise जो है, 3 shot exercise, इसके पीछे एक बड़ा चक्कर है. Visual sense, composition sense. ये तो एक बड़ा simple सा छोटा सा exercise है. They might ask you anything. Can you tell me 2 directors who are being inspired from 2 images from a painting which they have used in their film? I repeat my question once again. Can you tell me 2 directors and 2 images or 2 frames from the film which are being inspired from a well-known image? तो इससे मैं क्या जानना चाहता हूं? मैं जानना चाहता हूं कि आपको कुछ पेंटिंग का कुछ अता पता है या हवा में घूम रहे हो तुम लोग? Are you getting my point? So from a director's point of view, your understanding of the visual art is very, very important. अब एक तारसेम नाम का आदमी है, एडवर्टाइजिंग के लोगों को ज्यादा पता होता है, उसने कुछ 2-3 फीचर फिल्में बनाई है. उसकी हर फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं से वो कॉपी करता है, वो एक अलग बात है, बट इट इज अ विजुअल आर्ट. कुछ और लोग भी हैं जो एडवर्टाइजिंग के जमाने के बहुत पहले के लोग हैं, उनकी फिल्मों में भी आपको विजुअल का सेंस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से महसूस होगा. सो टू बिकम ए डायरेक्टर, योर विजुअल सेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. टू बिकम ए स्क्रिप्ट राइटर, everything, as I said, that you have to write visually. Dialogue is one part of it only. So script writing, when we talk about, it has a visual description as well as the dialogue. So even if you want to be a screenplay writer, your sense of writing visually should also be there. That is what they are also going to check. अब लोग कुछ पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे कि भाई हम क्या पोर्टफोलियो बनाए. हमने तो कुछ जिंदगी में बनाया नहीं अभी शॉर्ट फिल्म, तो हम क्या पोर्टफोलियो बनाए. तो उसका उपाय जो है, जो आंसर जो मैं आपको देने वाला हूं, वो ये है, जो मैंने पहले भी एक बार बोला था, दोबारा बोल देता हूं. राइटिंग विदाउट डायलॉग. डेवलप ए आइडिया ऑफ ए शॉर्ट फिल्म of 1 minute duration which is without dialogue on any public service theme. Donate ice, say no to plastic, save electricity. These kind of topic fall under the category of public service. मैं आप लोगों को एक पब्लिक सर्विस फिल्म का लिंक भेजूंगा. उसको देख के तुम ये सोचना कि इसमें एक थॉट है, बस एक थॉट है. उस थॉट के आसपास 2 घंटे में वो फिल्म बन गया होगा. एक लोकेशन के ऊपर एक एलिवेटर चाहिए उसके अंदर, और कुछ भीड़ भाड़ वाले लोग चाहिए जो थोक के भाव में मिल जाते हैं, और एक आइडिया चाहिए. आइडिया के लिए खोपड़ी चाहिए. खोपड़ी है तो बना सकते हो, नहीं है जाओ धार लगा के आओ. That is what the game is. It doesn't matter whether you are from St. Stephen, St. Columbus, Jesus and Mary, Mater Dei, etc., etc. It doesn't matter. From which school you graduated, which school you did your schooling, it has no meaning. What matter is that whether you have become, or whether you have developed your intelligence level, whether you have studied the literature. If you have studied the literature, have you understood it? Whether it is a Hindi versus English, again, it doesn't matter. You could be as comfortable as saying कि I like Phaneshwar Nath Renu, and you could talk about any of his work. For example, तीसरी कसम. For example, something else. Panchlat. It could be anything. जो भी आप बोल रहे हो वो आपको पता होना चाहिए. हवा में फेंक रहे हो, काफका फेंक दिया तुमने विलियम वर्ड्सवर्थ फेंक दिया,
तुमने कोई और उटपटांग का आदमी फ्रेंच फेंक दिया, पता पता कुछ है नहीं तुमको, इधर उधर से थोड़ा बहुत सुना लिया है, तो जो भी आप बोल रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो अपना मुंह चुप रखो, केवल उतना ही बोलो जितना पूछा जाए, उतना ही बोलो जिसके बारे में आपको पता है। दुनिया में हर चीज का हर आदमी को पता नहीं होता है। A chartered accountant is a fool when it comes to a lawyer, and lawyer is a fool when it comes to a chartered accountant, क्योंकि both are respective domain. But in the field of cinema, they expect you to be a little politically aware. Aware does not means you should, again there's a little difference between political awareness versus politically inclined. Politically inclined लोग उनको नहीं चाहिए, वहां जाके जो स्ट्राइक करेंगे, झंडा उठाएंगे लाल रंग का, वो लोग उनको नहीं चाहिए। बट यू कैन स्टिल हैव ए पॉलिटिकल व्यूज, you can still have a political views, whether it is pro or anti, it doesn't matter. For example, I give you an example. National School of Drama has recently decided to have a 1 year acting course in Bombay, और उसका फीस है 5 लाख। कितना फीस है? 5 लाख। अगर आपके ग्रुप में कुछ एनएसडी टाइप लोग हैं तो आपने वो फेसबुक का पोस्ट जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो इसका मतलब एनएसडी टाइप लोग आपके ग्रुप में नहीं है। अब इसके ऊपर व्यू हो सकता है, एनएसडी डिसाइडेड टू हैव ए 1 year course of acting where there are 2 semesters, 3 lakh each, and if you give both together then it becomes a 5 lakh. Do you think it is a good move or it is a bad move? What are your views? इसमें कहीं लिखा है ग्रुप डिस्कशन, लिखा है कहीं कुछ कुछ ऐसा, कुछ ग्रुप डिस्कशन जैसा कुछ लिखा है। हाँ जी, ये लिखा है ग्रुप डिस्कशन। ये है कौन सा कोर्स? स्पेशलाइजेशन इन स्क्रीन प्ले राइटिंग। तो ये जो ग्रुप डिस्कशन है, ये जरूरी नहीं है कि ग्रुप डिस्कशन किसी आइडिया को लेके होगा। सपोज हम लोग एक आइडिया जनरेट करना चाहते हैं, डोनेट आइस, ठीक है जी, 5 लोगों को बिठा दिया, बैठ जाओ, अब एक आइडिया डेवलप करो, 1 मिनट का पब्लिक सर्विस फिल्म विदाउट डायलॉग, डोनेट आइस। तो एक तो ये भी ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, हर आदमी अपना खोपड़ी खुजाएगा, कुछ 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 आइडिया देगा, डेवलप करेंगे, हर आदमी कंट्रीब्यूट करेगा, वहां एक मुझ जैसा आदमी चुपचाप बैठा हुआ देख रहा होगा कि इन 5 लोगों में से कौन आदमी क्या क्या आइडिया दे रहा है। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना तो मैं लिखता रहूंगा, बैठ के कंप्यूटर लैपटॉप है मेरे पास, बैठ के लिखता रहूंगा जो आइडिया तुम लोग अप्रूव करोगे, ठीक है। 5 लोग जो आइडिया अप्रूव करोगे लिखता रहूंगा, बट आइडिया कौन दे रहा है? आइडिया आ कहां से रहा है? 5 में से 3 लोग बोल रहे हैं, 2 लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, और 3 लोग बोल रहे हैं उसमें से एक आदमी बकवास कर रहा है, 2 आदमी कुछ सेंसिबल बात कर रहा है। तो ये 2 सेंसिबल लोग जो है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी मार्क वहां पर हो जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी। जो तीसरा आदमी है जो बकवास कर रहा है वो बाहर हो गया, और जो 2 लोग चुपचाप बैठे हुए हैं देख रहे हैं स्पेक्टेटर की तरह, वो वैसे ही बाहर हो गए, बिकॉज दे हैव टू थ्रो 3 पीपल आउट आउट ऑफ 4, एज सिंपल एज दैट। तो जरूरी नहीं है बोलना ही है, बकबक करनी है वहां पे। क्या बोल रहे हो सकता है एक आदमी केवल एक छोटा सा आइडिया, सीड आइडिया, उसका इतना कड़क हो कंपैरेटिव टू अदर पीपल। सो हाउ प्रोफाउंड इज योर थिंकिंग, हाउ ब्रिलियंट यू आर इन आइडिएशन, दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू चेक। ठीक है जी, तो ये 11:40 हो चुके हैं। टीचरों को बोलने की आदत होती है, मैं बोलता ही रहूंगा। आप लोग कुछ क्वेश्चन है पूछ लीजिए, अभी 20 मिनट का हमारे पास टाइम है। हाँ जी, पूछिए। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। तो सर जैसे स्क्रीन राइटिंग कोर्स में लिखा है कि फिल्म स्क्रीनिंग होगी एंड देन राइटिंग असाइनमेंट होगा, सो सर इज देयर एनी लाइक, सो शुड वी बी लाइक नोइंग हाउ टू रीड अ फिल्म एग्जैक्टली, मतलब व्हाट काइंड ऑफ असाइनमेंट कुड बी देयर, विल इट बी? इट विल बी अबाउट फिल्म एप्रिसिएशन, जिसमें आप किसी भी चीज को जो उसमें महान है, जो इंपॉर्टेंट है, विच इज रीड बिटवीन द लाइन है, वो आप उनको बताइए। इट कुड बी अबाउट एनीथिंग। तो सर लाइक हाउ टू रीड अ फिल्म बाय जेम्स मोनाको, लाइक इज दैट तो खुल लाइक? जाओ, मैंने वो जिंदगी में किताब पढ़ी नहीं। तो सर एनी मैं सजेशंस? 1 महीने तक हाउ टू रीड ए फिल्म पे लेक्चर दे सकता हूँ। पढ़ी नहीं ओके। इन द सेंस, किसी जमाने में पढ़ी थी। हम्म। उसका इसेंस जो है वो फॉर्मूला है। आपके अंदर वो मैग्नेट पैदा हो जाना चाहिए कि आप किसी भी फिल्म में वो चीज पकड़ लो, लोहा जो होता है जिसको सिनेमा बोलते हैं। हम्म। वो मैग्नेट कैसे पैदा करेंगे, वो एग्जाम्पल उसने दे रखे हैं जेम्स मोनाको ने।
और जेम्स मोनाको तो एक उस जमाने का है जिस जमाने में वो किताब लिखी गई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी तो सिनेमा बना है ना। उसके बाद तो जेम्स मोनाको कोट नहीं कर रहा है उन फिल्मों को जिसमें सिनेमा बना हुआ है। हम्म तो कोई भी ऐसी चीज जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना। इट मतलब कुड बी, फिल्म अप्रिसिएशन इट इज अ रिलेटेड। फिल्म अप्रिसिएशन। ओके ओके इट गॉट इट। कंसिस्ट ऑफ 10 to 20 things, हम्म which could be anything, but it could be just a silence. हम्म फिल्म के अंदर, पूरी टॉकी फिल्म के अंदर एक सीन है जिसके अंदर 30 सेकंड तक कुछ नहीं होता। क्यों? 30 सेकंड तक कुछ नहीं हो रहा, एक आदमी चल रहा है रोड के ऊपर बस। कुरसावा की एक फिल्म है, उसके अंदर 30 सेकंड तक एक बुजुर्ग आदमी एक मीटिंग से निकलता है, रोड पे चलता है, रोड का कोई ट्रैफिक नहीं सुनाई देता हमको। क्यों? कुछ बात होगी, कुछ कारण होगा। ऐसा नहीं कि उस दिन वो भूल गए, उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं हुई साउंड की। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ डायलॉग, इट कुड बी शॉट टेकिंग, इट कुड बी समथिंग हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। हम्म ये जैसे पिछली क्लास के अंदर मैं बोला, ये बात मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आप सब लोग अपने अपने बैकग्राउंड देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी हम लोगों ने। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। यू हैव टू नोटिस समथिंग विच इज रीड बिटवीन द लाइन, दैट्स इट। गॉट इट। थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई? बोलिए, अंशुल बोलिए। सर ये डायरेक्शन के लिए जो असाइनमेंट्स हो गए लाइक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड 3 शॉट एक्सरसाइज, व्हाट डू यू थिंक विल लाइक यूजुअली इज द वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट फॉर दीज एक्सरसाइजेस? देखिए, आपको आधा घंटा तो दिया ही जाएगा। आप जाइए कैंटीन में, चाय लीजिए, बैठ के लिखिए वहां पे, बट बस। लाइक इज देयर नो आधे लाइक घंटे बाद वापस आ जाइए। आधे घंटे का सब लोगों को टाइम दे दिया। आप कहीं भी जाइए, बहुत कैंपस में बहुत जगह है वहां पर, कहीं भी जाके बैठ के लिख के आइए। आधे घंटे बाद, इतने बजे, 10-11 बजे आपको छोड़ दिया, 11:30 बजे आ गए, आ जाइए आप। I don't mean the time they'll give us. Like 3 shot exercise दिया, how long? Like 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का हाँ, थ्री? वो इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर कुल मिला के देखो, 1 मिनट के अंदर भी अगर इस टाइप का कोई एक्सरसाइज होता है तो वो 1 मिनट से ज्यादा का नहीं देंगे। तो क्योंकि एक 1 मिनट मिनट तक में भी करना। कम से कम 8 से 10 शॉट तो आपको लेने ही पड़ेंगे। तो 8 से 10 शॉट या 12 शॉट या 15 शॉट भी लेते हैं तो 1 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा। मैक्सिमम लिमिट शुड बी 1 मिनट अकॉर्डिंग Okay. टू। And for statement of purpose, word limit? Be roughly, let's say for example, 500 words. Okay. Okay, got it. मैंने एक फिल्म बनाया था बैंड बाजा वाला। ये जो शादी वादी में बैंड वैंड के लोग जो बजाते हैं, सिंपल सा सब्जेक्ट है। Hmm. तो मेरा क्या लेन देन, मुझे मुझे क्यों बनानी है वो फिल्म? मुझे क्या लगा कि मैं इसके ऊपर फिल्म बनाऊं? Hmm. मेरा कनेक्ट है उससे, कुछ चक्कर है मेरा अपना। मेरा क्या चक्कर है बताओ? ये एफटीआई के लिए बनाया था आपने? नहीं, एफटीआई के लिए नहीं बनाया था, पीएसबीटी के लिए फिल्म बनाई थी। Okay. 3.5 लाख का फंडिंग था उसमें। Okay. 1.5 लाख रुपए लगे थे, 2 लाख रुपए मैंने बचाए थे। Okay. 1.5 लाख रुपए इसलिए लगे थे कि मैंने बहुत शूट किया था। 30 मिनट की फिल्म के लिए मैंने 40 टेप शूट की थी, आधा आधा घंटे की। Oh, damn. खैर, एनीवे, Okay. बियर Thank पी के फिल्म बनाओगे तो 1.5 लाख लगता है डॉक्यूमेंट्री में। कोल्ड ड्रिंक पी के बनाओगे तो 1 लाख में बन जाती है। Hmm. 50,000 रुपए उसमें बियर के होते Got it. Thank you. हैं। हाँ जी। सर 2 क्वेश्चंस। एक तो आपने जो बोला सीवी के लिए, आई एम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री, तो वो सीवी में शुड आई ट्वीक समथिंग कि मैं वैसे ही रखूं? जो भी कुछ है वही रखो, ईमानदारी से जाओ। वहां पे हम्म ऐसा नहीं है कि तुम एमएससी फिजिक्स करने जा रही हो तो फिजिक्स ऑनर्स होना चाहिए। हम्म। वो एमएससी फिजिक्स की क्लास अटेंड नहीं करने जा रही हो आप। करेक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी करने नहीं जा रही हो कि आपको केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होना चाहिए बीएससी में, इट डजंट मैटर। जो भी ओके, कहीं से भी सेकेंडली करके वेरी आए हो, ऑनेस्ट। देखो क्या है फॉर्मूले का, फॉर्मूला मास्टर की समझ लो। हाँ जी। आईआईटी के अंदर इंजीनियरिंग करके लोग निकलते हैं, उसके बाद आईआईएम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम्म आईआईटी वालों की खोपड़ी थोड़ी शार्प होती है। दे कैन क्विकली सॉल्व द प्रॉब्लम देन सम बीए ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स। हम्म। दिमाग कितना है, दैट इज व्हाट दे वांट टू चेक। ठीक है ये सर। सब बकवास है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। मैंने आईआईटी के अंदर भी वर्कशॉप्स किए हैं स्क्रिप्ट राइटिंग को लेके, पीएसए को लेके। पीएसए इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, आई लव इट। खड़ाखट खड़ाखट दिमाग से निकलता है आइडिया, क्योंकि दिमाग शार्प होता है लोगों का।
समझे कि नहीं? सर दो और क्वेश्चंस हैं। बोलिए। एक आपने जो एग्जांपल दिया कि लाइफ इन द वाटर में मास्टर स्ट्रोक डायरेक्ट, इफ ऐसे कोई वो क्वेश्चन पूछते हैं इंटरेक्शन राउंड में, जो मूवी मैंने देखी ही नहीं है। तुम भी पकड़ सकती हो उसको, जो मैंने मास्टर स्ट्रोक बोला है अभी, उसके लिए हाँ ऐसा नहीं है कि जिसने इरविन श्रोडिंगर पढ़ा हुआ है वेव इक्वेशन वही समझ पाएगा। नहीं, क्वांटम पर वो मैकेनिक्स नहीं मूवी। है ये। उसके अंदर आपके पास वो अलर्टनेस चाहिए पकड़ने की। आप पर भी वो पकड़ सकती हो दिखाएंगे। उसको। आपने नहीं देखा है ओपनिंग हाँ सीक्वेंस, अभी देख लो जाके। हाँ अगर जी। आपके पास दिमाग होगा तो आप भी पकड़ लोगी। अच्छा, बट ये वो जो दिखाएंगे उस पे क्वेश्चन होगा ना, इट कांट Right. बी लाइक सम। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, वन मोर क्वेश्चन आई हैड। जब हमें कोई स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए जब भी कोई स्टोरी डेवलप करनी है, वो स्क्रिप्ट के फॉर्म में होना चाहिए कि इट शुड बी जस्ट अ स्टोरी, लाइक, क्योंकि स्क्रीन वो प्ले। आपको बोलेंगे स्टोरी बोलते हैं तो स्टोरी होना चाहिए, उसमें कोई डायलॉग नहीं चाहिए उसका। ठीक है जी। अच्छा। और हाँ। अगर वो डायलॉग के लिखने के लिए बोल रहे हैं तो ए ने ये बोला, बी ने बोला है, सी ने बोला, तो वो उस फॉर्मेट में होना चाहिए। वो ओके आपको ठीक। बताएंगे किस फॉर्मेट के। अच्छा ठीक है सर, हाँ ऑल जी, राइट। किसी ने बोला है यहाँ पर अभिनव ने SRFTI में गया था, देर आर थ्री शॉर्ट एक्सरसाइज, वी गॉट ए थीम ऑन अ स्पॉट, वी वर गिवन 50 मिनट्स टू मेक ए 90-second फिल्म इन 3 शॉर्ट्स। बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्या बनाया अभिनव बाबू? अभिनव कहाँ है यहाँ पर? अभिनव ये हाँ रहे। सर। हाँ हाँ सर, जी। तो सर मुझे ऑन द थियर लाइक ऑन द स्पॉट थीम क्या था? अबैंडनमेंट। सर अबैंडनमेंट मिला था मुझे। अबंडनमेंट। हाँ, तो सर ऐसे ही मैंने। थीम देते हैं बंगाली लोग, जो है कुछ ऐसा उटपटांग का एब्स्ट्रैक्ट सा वर्ड उठा के तुम्हारी झोली में डाल देते हैं, अब तुम सर फोड़ते रहो। चलो कोई बात। तो सर उस हाँ, एक थीम को। समीरन दत्ता नाम का डायरेक्टर है, जिसको मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे जमाने में वो FTI में था, सिनेमाटोग्राफी मैं भी सीखता था, वो भी सीखता था। तो वो उलझा हुआ आदमी है, इसी टाइप का आदमी है। और बाकी के लोग भी ये पुतुल वुतुल टाइप जो लोग हैं, ये सब उलझे हुए लोग हैं। खैर, तो क्या बनाया तुमने अबंडनमेंट में? तो सर ऑन द स्पॉट मतलब मुझे जो आइडिया आया, मैंने कुछ लोगों को मतलब एक झुंड में बना दिया और दिखाया कि वो ऐसे कॉलेज गोइंग मतलब ऐसे ग्रुप एक हैंग आउट कर रहे हैं। ये मैंने फर्स्ट शॉट में इस्टेब्लिश किया और लोग आ रहे जा रहे फ्रेम में। फिर सेकंड शॉट में मैंने सर वहां पे मेरी एक दोस्ती हुई किसी से जो पहले थिएटर कर चुका था, तो मैंने उससे बोला कि थोड़ा लिम्प करते हुए आना, स्पेशली एबल्ड पर्सन मैंने उसको दिखाया। तो वो जैसे ही आता है उस शॉट में, तो लोग चले मतलब लोग फ्रेम छोड़ना शुरू कर देते हैं कि अच्छा कोई अच्छा, मैं स्पेशली। थोड़ा सा बीच में वो रोक देता हूँ। यस सर। तुम लोग, दो चीजें हैं वहां पर। एक तो है थीम को इंटरप्रेट करना, अबंडनमेंट। ठीक है, ये टिपिकल SRFTI बंगाली इंटेलेक्चुअल थीम दिया है उन लोगों ने। मुझे इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट इस चीज में है कि आपको फ्रेमिंग का सेंस है कि नहीं। 3 शॉट एक्सरसाइज का बेसिक पर्पस ये होता है। बट वो क्या करते हैं, उसके साथ एक और चीज घुसेड़ देते हैं उसके अंदर, वो है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। ये जो अबंडनमेंट है, ये एक इंटेलेक्चुअलाइजेशन है। उसको तुम ठीक से इंटरप्रेट नहीं भी करोगे ना तो भी चल जाएगा। ये तुमको मैं इसलिए बता रहा हूं, FTI SRFTI में थोड़ा फर्क है। वहां पर बंगाली लोग ये कोशिश करते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम ही गोदार्ड हैं, हम ही बर्गमैन है, हम ही तारकोस्की है। FTI में ऐसा नहीं करते लोग। FTI में थोड़ा सा लोग सिंपल रहते हैं। वो ग्रामर लेवल पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे आपको कि तुम्हें ग्रामर व्रामर की पकड़ है कि नहीं है। ये सब अड़ंगा जो है ये SRFTI में चलता है, समझे कि नहीं? बट FTI में भी ऐसा नहीं है बंगाली लोग नहीं पढ़ा रहे, बंगाली वहां भी पढ़ा रहे हैं। बट वहां पर जैसे संदीप चैटर्जी, वो बंगाली है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डायरेक्शन का। बट यहां पर आके थोड़ा सा लोग सुधर जाते हैं FTI में, इतना नहीं उलझाएंगे उठपटांग का अबंडनमेंट फलाना ढिमका। आपको कुछ सिंपल सा ही थीम दिया जाएगा जिसको थोड़ा समझ के, बट कंसंट्रेट मोर ऑन द ग्रामर। दो चीजें पकड़ लो बस, ग्रामर ऑफ फिल्म मेकिंग डायरेक्शन वालों के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग वालों के लिए खोपड़ी, इंटेलिजेंस, आइडिया, दैट्स। आप अबंडनमेंट के नाम पर कुछ भी बना दोगे, उसका शॉट टेकिंग अगर अच्छा होगा, फ्रेमिंग अच्छा होगा, तो भी आप सिलेक्ट हो जाए। ये अबंडनमेंट वो उनका अपना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि देखो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, प्रोफेसर बन गए, बट देखो हम तो बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। अब तुम करो अबंडनमेंट को डी अबंडन। तो उसमें मत फंसना। ग्रामर में, ग्रामर को पकड़ के रखना, ग्रामर तुम्हारी करेक्ट होनी चाहिए, फ्रेम फ्रेम तुम्हारा करेक्ट होना चाहिए। 3 शॉट का क्या मतलब है? अब 3 शॉट टेकिंग किसी भी चीज में हो सकती है, तारकोस्की की फिल्म में भी हो सकती है, और एक सिंपल कुरोसावा का नैरेटिव में भी हो सकती है। तो उसमें मत फंसना, दैट इज माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछो।
तभी कुछ फायदा होगा। सर 3 शॉट एक्सरसाइज खाली डायरेक्शन डायरेक्शन वालों के, स्क्रिप्ट राइटिंग वालों के लिए कोई लेना देना नहीं है 3 शॉट 2 शॉट। ओके। तुम अपना दिमाग लगा के मुझे ये समझाओ कि दिमाग है कि नहीं, बस। आई नीड टू चेक योर इंटेलिजेंस। उसके 10 तरीके मेरे पास ढूंढने के लिए, वो मैं देख लूं, मुझे समझ आ जाएगा, पता लग जाता है, खुशबू आ जाती है। इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जिसकी खुशबू उन लोगों को आ जाती है। इतनी अकल उन लोगों के पास होती है कि इनमें से कौन गधा है और कौन घोड़ा है। गधे और घोड़ों को डिस्टिंग्विश करने का उनके पास एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट को घुमा के वो लोग देख लेते हैं। मैग्नेट सर पैरल पकड़ लेता है। अगर आप तुम घोड़े हो तो पकड़ लेंगे, गधे हो तो भी समझ आएगा। खुशबू होती है, जैसे चावल चावल जब बन रहे होते हैं खुशबू आ जाती है घर में, सबको पता लग जाता है चावल बन रहे हैं। तो खुशबू है वो, तुम्हारी खुशबू उनको आ जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो इंटेलिजेंट बात करता है, जो गधा है वो गधों वाली बात करेगा, घोड़ा घोड़ों वाली बात करेगा, वो पता लग जाता है। और सर 2 दिन जो इंटरैक्शंस हैं दोनों दिन सबका होगा और इज इट लाइक हर आधा? आदमी को 15-15 मिनट दिया जाएगा। अच्छा होगा सबों का, होगा सबों का, सबों को 15-15 मिनट दिया जाएगा चेक करने के लिए। ओके बट बोथ द डेज एवरीबॉडी विल बी इंटरव्यूड और इज इट लाइक फर्स्ट डे आधों का होगा एंड हो सेकंड? सकता है आधों का हो। देखो, बिजी वो दोनों दिन रखेंगे आपको। अच्छा आधे दिन कुछ और चलेगा, आधे दिन कुछ और चलेगा। ऐसे नहीं घर में सोते रहो आके, आप FTI आ रहे, चद्दर ओढ़ो सो जाओ। यहाँ कहीं जाके कुछ ढूंढ के आ रहे हो पराठा, मंदिर जाके कहीं इधर उधर। दोनों दिन बिजी रखेंगे आपको। एक ग्रुप आपको कुछ और चेक करेगा, दूसरा ग्रुप कुछ और चेक करेगा, दूसरे दिन दूसरा ग्रुप कुछ और चेक करेगा, दूसरा ग्रुप कुछ और चेक। हाँ जी। एनीबडी एल्स? Sir, will they ask like if these basic questions like what is your favorite film or director? बिल्कुल, मैं तो पूछूंगा। मेरा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, तो उसमें हिंदुस्तान अगर की वो फिल्म चूज करो जिसको तुम्हें लगता है कि काश कि ये फिल्म मैंने बनाई होती। तो वैसे अगर कोई फिल्म है जिसने मेरे को बहुत इंस्पायर इन्फ्लुएंस किया है लेकिन वो उन्होंने देखी ना हो या सलमान खान वाली फिल्म मत बोल देना, नहीं शाहरुख नहीं, खान की फिल्म मत बोल that's not देना। what I'm saying. If there is a film that they are not aware of or डजंट मैटर। okay, that's all right. मान लो मैंने रोंडो का नाम लिया, एक मिनट, हाँ उन्होंने नहीं देखी, 1 मिनट के लिए देखिए, सबों ने डिस्कस होती है, म्यूजिक का खेल है उसके अंदर, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए तुम वो फिल्म क्यों पसंद करते हो। हाँ मेरे को पता है, मैं तो बस, कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकता हूँ, बट व्हाट इफ दे डोंट नो, देन विल डजंट दैट मैटर। दुनिया में ऐसा थोड़ी है सब कुछ उन्होंने भी देखा हो जो तुमने देखा हो। तुम महान हो, वो गधे हैं। ऐसा ओके भी हो सकता है, यही थोड़ी है कि वही महान है। ओके. हो सकता है वो गधे हो, आप महान हो। Also, sorry, I'm not giving anyone else a chance. But what about is there any kind of dress code that they look for, like the way you should present yourself? Like, Don't use the ribbon for yourself. Just joking. There is no dress code. okay. When I was of your age, my hairstyle was like yours. So one day my mother said, take 5 rupees and buy a ribbon. I'll probably Was do the that if sense I of get it. humor? I'll No, do no, that if I get selected. no. It has nothing to do with your hairstyle. It has nothing to do with your what kind of clothes you wear. It has nothing to do with that. It Hmm. has to do with your sincerity, with your intelligence. That's it. Sincerity and intelligence. 2 things. Okay, I got it. Okay, Sir, yeah, please. yeah. Sir, the screenwriting course is for film, TV, web series, etc. तो जब हम interactions कर रहे हैं, if there is any question जहाँ पे मैं वेब सीरीज या शो का एग्जाम्पल दे सकती हूँ, is that okay? It's fine. Okay. Doesn't matter. देखो क्या है, अब मैं जो एग्जांपल देने वाला हूं, यू मे नॉट appreciate that, but that's very often I give that example. Wine, whiskey, beer, vodka, इन तीनों चारों चीजों के अंदर एक चीज कॉमन होती है, उसका नाम होता है अल्कोहल, जिसको केमिस्ट्री में बोलते हैं C2H5OH। जिन्होंने केमिस्ट्री 7th क्लास में ठीक से पढ़ी है उनको ये याद होगा। परसेंटेज डिफरेंट होता है, टेस्ट डिफरेंट होता है, राइट? Like a protein, in a more sophisticated language, protein is found in 10 different kind of vegetables or material, milk or curd or whatever.
तो बेसिक जो खेल है वो वही रहता है। खोपड़ी चाहिए वेब सीरीज को लिखने के लिए भी, खोपड़ी चाहिए टीवी सीरियल को लिखने के लिए भी, खोपड़ी चाहिए फीचर फिल्म। Always. इसके बाद दिमाग का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाता है, बट इट डजंट मैटर। Okay. चाकू के अंदर धार होती है, अब उस चाकू से तुम टमाटर काटो, मूली काटो, किसी की गर्दन काटो, तुम्हारे ऊपर। चाकू का काम है काट, धार चाहिए, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग एट, कि तुम्हारा तुम्हारा जो दिमाग है उसके ऊपर धार लगी हुई है या नहीं लगी हुई, या नकली दिमाग लेके घूम रहे हो पत्थर वाला जिसके ऊपर कोई धार नहीं है। धार होनी चाहिए वो, डजंट मैटर। ठीक है Can I ask one last question, sir? जी? Sorry. While the screening is being done, ये अच्छी चीज है या खराब चीज है कि मैं नोट्स भी बनाऊं साथ में देखते आप? नोट्स बनाइए, मैं तो आज भी नोट्स बनाता हूँ। ओके। 25 चीज याद नहीं रख सकता आदमी। छोटी सी मेरे पास एक टॉर्च रहती है, खट से मैं ऑन करता हूँ, लिखता हूँ। ओके नोट्स बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि आप उनको फिर एलोबरेट कर सकते हैं। जी। छोटी टॉर्च लेके जाइएगा सब लोग, पेन में मोबाइल में होती है वैसे आजकल, बट नहीं हो, जिसके मोबाइल में नहीं है तो उसको उसके पास होनी चाहिए। टॉर्च विल बी हेल्पफुल। प्लीज फॉर गॉड सेक पेन पेपर जरूर लेके जाइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, विश यू ऑल द बेस्ट। होप इट वाज हेल्पफुल फॉर दोज हु रियली वांटेड टू बी हेल्प्ड। जो लोग अकड़ में घूम रहे हैं, एटीट्यूड में घूम रहे हैं, सर उनको परमात्मा बुद्धि दे, यही मैं कह सकता हूं। इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। सर आई हैव ए क्वेश्चन सर। quick because 12 o'clock I have to start something else. सर हमको क्या जो शॉर्ट्स लेंगे उसको क्या बाद में एक्सप्लेन करना पड़ेगा या फिर वी जस्ट नीड टू सबमिट देम? दोनों हो सकता है, सबमिट भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी करवा सकते हैं। मुझ जैसा आदमी सबमिट नहीं करवाएगा, बोलेगा बोलो फटाफट 4 पॉइंट बोलो, 1 2 3 4, यू हैव अ 4 मिनट, क्विक। ओके मतलब वो मेरे डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने फ्रेम के ऊपर ये क्यों रखा, ये क्यों नहीं रखा, या क्यों नहीं पूछेंगे, वहां इतना टाइम नहीं होता बेटा। मैं तुमसे पूछा तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर से लाइट क्यों आ रही है, मेरी मर्जी। ओके सर। मैंने तुमसे पूछा तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर से एक बल्ब की लाइट क्यों आ रही है, मेरी मर्जी। मेरी शक्ल तो फिर दिख रही है। ठीक है। क्यों का क्वेश्चन नहीं है, वो समझ जाएंगे। वो क्यों तुमसे पूछेंगे नहीं, उनको पता है कि तुम घोड़े हो इसलिए तुमने ये आंसर दिया है, और गधे हो तो इसलिए आंसर। ठीक है सर। डिस्टिंक्शन बिटवीन घोड़ा एंड गधा, दैट इज द होल पर्पस। अब ओके तुम सर। ये भी बोल सकते हो कि सर हम तो टाइगर हैं।